اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میرا دہنا ہاتھ ہے بھائی، آج کل بلکہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہوں کیونکہ الٹا پلٹا دکھتا ہے آپ لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں اور معزز سامعین، آج کا ویڈیو تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، مرد عورتوں کے لیے آج کا ویڈیو ہے، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر ایمان والے ہوں، سب کے لیے ہے۔ پہلے تو آپ لوگ ویڈیو کا ٹائٹل آپ اوپر دیکھ لیں، ویڈیو کا ٹائٹل دیکھ لیں، سفلتا کی آف سکسیس۔ ایک فوٹو میں نے لگایا ہے، بائیں طرف اوپر دیکھیے، اس فوٹو میں ایک ہی انسان کے دو طرح کے فوٹو ہے۔ ایک ماں اپنے 3 بچوں کو لے کر کھڑی ہے، پیچھے اس کا غریبی کا نظارہ ہے، کچا مکان ہے، پھوس کا مکان ہے، کچا مکان ہے، غریبی کا نظارہ ہے، بچے بھی ادننگے ہیں اور وہ غریبوں کا چہرہ ہی الگ دکھتا ہے۔ دیکھو ماں 3 بچوں کو لے کے کھڑی ہے، ادھر اوپر لکھا ہے 1985 اور اس کے اوپر اگر آپ لوگ پڑھ پائیں تو لکھا ہوا ہے ہندی میں کہ اچھی سچی طاقت کتابوں کے اندر ہے، بندوق مت اٹھاؤ، گولی، بندوق، چاقو اور بندوق اٹھا کے کچھ فائدہ نہیں، اس میں نہیں طاقت ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو قلم اور کاغذ، کتاب اٹھاؤ، کتاب پڑھو۔ اسی لیے میں نے اوپر ٹائٹل لگایا ہے کی آف سکسیس، یعنی کہا جاتا ہے ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس۔ ایجوکیشن از دا کی آف سکسیس مطلب شکشا کامیابی کی چابی ہے۔ اور شکشا کس کو نہیں چاہیے، چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو۔ پوری دنیا کے انسان آج کے زمانے میں جو قریب 8.5 بلین 850 کروڑ مرد عورت ہیں، سب کو چاہیے شکشا۔ اس عورت کا میں فوٹو کا بات کر رہا تھا، بغل میں جو میں نے لگایا ہوا ہے دیکھیے بائیں طرف، کیوں بیچاری عورت غریب تھی، اس کا غریبی کا نظارہ، کچا مکان، 3 بچے، لیکن جب اس نے محنت کیا، مزدوری کیا، اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا، تو بچے جب پڑھ لکھ گئے تو 1985 میں غریبی تھی، 2025 کا بغل والا فوٹو دیکھیے، وہی 3 بچے ہیں، ماں کھڑی ہے سامنے اور 3 بچے ڈاکٹر بن کے کھڑے ہیں۔ پڑھائی نے لائف اسٹائل چینج کر دیا۔ ہاں وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے کہ غیر اسلام والوں کے لیے صرف دنیا ہی جنت ہے، دنیا کی سکسیس وہ دیکھتے ہیں۔ غیر ایمان والے جو نان مسلمس ہیں، ہندو بھائی، یہودی، کرسچن، سکھ، جین، کسی بھی دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں، جو اللہ والے نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم کے لیے، ان کے لیے تو ہمارے آقا، ہم سب کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے۔ تو جو کافر ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے لیے صرف دنیا کا سکسیس، کامیابی چاہیے، یہاں کی سفلتا چاہیے دنیا میں، مال ہو، دولت ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، نوکر ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پراپرٹی ہو، بڑی فیکٹری ہو، بڑا آفس ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، وہ لوگ دنیا کی ہی کامیابی دیکھتے ہیں۔ اور کیوں نہیں دیکھیں گے جب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے نان مسلمز کا۔ لیکن اگر ہم اور آپ نے اپنے اللہ کا، اپنے نبی کی شہادت دی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ہم کو تو دونوں کامیابی چاہیے۔ ایک سچے مسلمان کو دونوں کامیابی چاہیے۔ پہلے ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، دنیا کی کامیابی، اور اس کے بعد مرنے کے بعد آخرت کی کامیابی، دونوں کامیابی چاہیے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے جو پوری کائنات بنائی ہے، اللہ نے آسمانی کتاب جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، آسمان کی کتاب جسے پوری دنیا کہتی ہے القرآن، ہم سب کے مسلمانوں کے جینے مرنے کا ہے سمویدھان،
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का आसमानी फरमान कुरान, कुरान में जो पहला अल्फाज आया वो आया इक़रा। हाँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, खास करें मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों जहां की हमको कामयाबी चाहिए, और उसकी चाबी यही है एजुकेशन, शिक्षा सफलता की चाबी है। आज का वीडियो का टाइटल ही मैंने बनाया है, शिक्षा सफलता की चाबी है। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। कुरान में जो पहली वही उतरी गार हिरा में, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने 3 मरतबा नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा इक़रा। इक़रा का माने होता है पढ़िए या पढ़, इक़रा पढ़, पढ़िए। जबकि गालबन हजरत जिब्रील भी जानते रहे होंगे, लेकिन अल्लाह तो जानते ही थे कि हमारे नबी उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबी में जवाब दिया कि मैं उम्मी हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। किताबों में लिखा है, दीनी किताबों में लिखा है कि 2 मरतबा जब हजरत जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, तो 2 मरतबा अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया मैं उम्मी हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। उसके बाद दीनी किताबों में लिखा है कि हजरत जिब्रील ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के ऐसा अपने सीने से मस किया, दबाया, सीने से लगाया और झटके से छोड़ दिया। और 3री मरतबा पूरी आयत पढ़ी हजरत जिब्रील ने, इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़, और आगे तक आयत है। इसका तर्जुमा मफ़हूम यह है कि अब की बार डांट के हजरत जिब्रील ने कहा पढ़िए अपने रब के नाम से जो सारे कायनात का मालिक है, इक़रा रब्बिकल्लज़ी फलक़, इक़रा रब्बिकल्लज़ी फलक़, इक़रा रब्बिकल्लज़ी खलक़। लिहाजा मुझसे अगर कोई मिस्टेक होगी आयत पढ़ने में तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आलिम हाफिज हूँ नहीं। इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी खलक़, इस तरह आयत है। मैं चूँकि हाफिज मौलवी नहीं हूँ, अगर आप लोगों को कोई इश्काल होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। लिहाजा आता है किताबों में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ, आसमानी गैबी इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में, दिमाग में डाल दिया। तो इस तरह हम लोग मुसलमानों के लिए पहले तो कुरान और सही अहदीस का इल्म होना चाहिए, क्योंकि इल्म नहीं होगा तो ढंग का अमल नहीं हो पाएगा, और जो इल्म नहीं होगा, अमल नहीं होगा, तो हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर पाएंगे ढंग से। और दूसरी हदीसों में है जिसका मफहूम है, हम सब के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नमाज, अलग अलग हदीसों में अलग अलग मफहूम है। नमाज मोमिन की मीरास है, नमाज अल्लाह के ख़जाने की लेने की चाबी है, नमाज हर मुश्किल का हल है, नमाज रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, नमाज मोमिन की मीरास है। तो जब हमारे पास इल्म नहीं रहेगा कुरान हदीस का, तो ढंग से हम नमाज भी ना पढ़ पाएंगे। वो अलग बात है कि एक बिना पढ़ा लिखा आदमी भी सच्चा ईमान पे रह सकता है और जन्नत जा सकता है। वो पुराना देख लीजिए, एक बद्दू था जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके चिमट गया था। उसने कहा अल्लाह के रसूल हम पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन जन्नत में जाना चाहते हैं। लंबी हदीस है, उसका मफहूम यही है शॉर्टकट कि अल्लाह के रसूल ने कहा तू जबान की, दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ जबान की गारंटी दे, यहाँ से कोई गुनाह नहीं करेगा, और जो दोनों रान के बीच की शर्मगाह की गारंटी दे कि जायज़ जगह पे ही इस्तेमाल होगा, नाजायज़ और हरामकारी नहीं होगी। मैं जन्नत दिलाने की गारंटी लेता हूँ। किसने कहा था? हम सब के आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मतलब क्या हुआ, दोनों जबान, दोनों जबड़े, ये जबड़े हैं, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा, दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ जबान, दोनों जबड़ों के बीच की चीज़ जबान, और हर मर्द औरत के दोनों रान, पैरों के बीच की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह, मर्द की शर्मगाह, ये दोनों जबान और शर्मगाह जहाँ जायज़ है
उसी जगह पे इस्तेमाल होना है, नेकियां मिलती हैं। और नाजायज़ और हराम जगह पे ज़बान का इस्तेमाल हुआ और शर्मगाह का इस्तेमाल हुआ तो बहुत बड़ा वबाल और गुनाह अजीम है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाएँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे कितनी दलीलें दी जाएं कि हमारा कुरान इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी से शुरू हुआ और पढ़ाई एजुकेशन का बहुत मर्तबा है हमारे इस्लाम मजहब में। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज के ज़माने के मुसलमान अगर फिसड्डी हैं, फेल हैं, तो 3 चीज़ों में फेल हैं। सच्चे ईमान में भी फेल है, एजुकेशन और शिक्षा में भी फेल है, और मालदारी में भी फेल है, यानी हलाल रिज़्क़ के लिए भी फेल हैं। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप हजरात भी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। कि जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, मुशाहिदा है, पूरे दुनिया के मुसलमान ईमान, सच्चा ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला ईमान, सच्चा तौहीद ईमान, तौहीद वाला ईमान पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बहुत कम मुसलमान पाए जाते हैं। इसलिए ईमान के बारे में भी अक्सर मुसलमान फेल हैं। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, कुरान का, हदीस का, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म, साइंस का, ज्योग्राफी का, कॉमर्स का, लिटरेचर का, किसी चीज़ का इल्म, यहाँ भी अक्सर मुसलमान फेल हैं। और यही दोनों वजह है, जब हम और आप ईमान में फेल हैं, एजुकेशन और शिक्षा में फेल हैं, तो इस तरह गरीबी भी नहीं रहेंगे, गरीबी भी रहेंगे, मालदारी भी नहीं आएगी। हाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है कि अगर इंसान गरीब बहुत गरीब रहेगा तो अन करीब इंसान की मुफलिसी यानी गरीबी कुफ्र तक इंसान को पहुंचा सकती है। मुफलिसी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देगी, गरीबी कुफ्र तक पहुँचा सकती है। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल यही है कि ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी की चाबी क्या है। कामयाबी की चाबी क्या है? एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। शिक्षा कामयाबी की चाबी है। एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। पढ़ाई लिखाई, इल्म, तालीम ही कामयाबी की चाबी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह हम सब मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी चाहिए। तो आखिरत के कामयाबी यही है कि सच्चा हमको कुरान और हदीस, कुरान और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पे सच्चा पक्का अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक दे दे, तो इंशाअल्लाह आखिरत कामयाब। अब रही गई बात दुनिया की, दुनिया में हमारे इस्लाम मजहब ने आपको हमको रोका नहीं है। कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, फलसफा पढ़िए, दीनी इल्म हासिल कीजिए। और दुनियावी इल्म चाहे साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, लिटरेचर पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए, लेकिन खूब हायर एजुकेशन लीजिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ताकि पढ़ लिख करके आदमी प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, जज बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वगैरह वगैरह। हायर एजुकेशन, उससे क्या होगा? उससे आप अपनी खुद की जायज़ कमाई तो करेंगे, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों की परवरिश करेंगे जायज़ कमाई से, साथ साथ उम्मत का, कौम का, मुस्लिम्स का, नॉन मुस्लिम्स का, सबका फ़ायदा भी करेंगे। इसीलिए कहा जाता है पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया, बस आखिरी में यही दुआ है कि अल्लाह करे पूरे दुनिया के लोगों को गालबन समझ में आ गया है कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस, लेकिन मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं। लास्ट में, आखिरी में यही मैं दुआ करूँगा, अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी, आप सभी भाई बहन, बेटा बेटी, सबको अल्लाह तौफीक दे दे और समझ दे दे कि बिना दुनियावी इल्म और दीनी इल्म के हम कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह दुनियावी इल्म दे,
تاکہ ہم دنیا میں حلال رزق کمائیں، اللہ دینی علم پہ عمل پیرا کرے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں، اور مرنے کے بعد میں دعا کرتا ہوں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، آمین آمین یا رب العالمین۔